डोनाल्ड ट्रंप ने वो सारी बातें दोबारा से दोहराई जो इस ऑपरेशन में उन्होंने पहले भी एक्स पर साझा की थी। अमेरिका सेना ने बड़ा हमला किया, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा यह मिशन सक्सेसफुल रहा, ईरान के परमाणु ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया। उन्होंने ये भी कहा उन पायलट्स को, उन लगातार जो अमेरिकी इसमें मिशन में इन्वॉल्व थे, उनको भी बधाई दी। अब ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए, यह भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल सुमित, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो तमाम बातें पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताई जा चुकी है, उन्हें फिर से दोहराया गया है और फिर से उम्मीद यही की जा रही है कि ईरान अब शांति के रास्ते पर आएगा। जिस तरीके से अमेरिकी सेना ने बड़ा हमला किया है, जिस तरीके से तीनों ही परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तमाम जानकारियां दी गई हैं और कहा गया है कि ईरान को अब शांति के रास्ते पर आना चाहिए, अब शांति का समय है। Names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. आपने सुना, यहाँ पे तमाम बातें उनकी तरफ से रखी गई हैं। जनरल सुलेमानी की भी उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा है कि शांति का रास्ता ईरान के पास बचता है। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि आगाह भी कर दिया है। इजराइल को भी उन्होंने यहाँ पर बधाई दी है। कुल मिलाकर उन्होंने अपनी सेना की, अपनी स्ट्रैटेजी की तारीफ की है। रोहित, सबसे बड़ी और अहम बात ये, जिस तरीके से लगातार जानकारियां जो छन छन कर सामने आ रही थी, एक बार फिर से दोहरा दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और बार बार ये कहना कि शांति का एकमात्र रास्ता बचता है। उन्होंने क्लियर कर दिया है
कि अगर ईरान अब कुछ करेगा, जो हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे उनके एड्रेस से पहले, तो बहुत बड़ी मुश्किल में होगा। उन्होंने ये कहा कि प्रिसीशन से और बहुत इजी टारगेट्स है अब अमेरिका के लिए, ये सारे जो भी ईरान में बचे हैं। और मैंने ये भी थोड़ी देर पहले कहा था कि ट्रंप ने खुद ने, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि उन्हें पता है कि खमेनी जो है वो कहाँ छुपे हुए हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सारे इंडिकेशंस दिए हैं ईरान को कि अब इस जो ये वॉर है इसको खत्म कर दिया जाए, पीस की तरफ हो जाए। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके लिए और जो है मुश्किलें बढ़ेगी बिल्कुल। ईरान में। और बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू को, हमने जो थोड़ी देर पहले कहा था कि उन्हें बताया गया था इसके बारे में, उन्होंने यहाँ पे थैंक किया और कांग्रेचुलेट किया नेतन्याहू को और कहा कि हमने एज ए टीम काम किया है इस ऑपरेशन के ऊपर। तो ये भी बहुत बड़ी बात है इसमें। बिल्कुल। और रोहित रोहित खास तौर पर यही बात है कि उन्होंने साफ तौर पर ये सारी बातें क्लियर कर दी कि देखिए हमने इजराइल को कॉन्फिडेंस में लेकर ये ऑपरेशंस किए और अब सारी बातें जो हैं वो ईरान के पाले में। हमारे साथ ईरान से पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, हसन जैदी साहब। जैदी साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान सामने आए हैं, जो लगातार ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिए, दोबारा से उन्होंने ईरान के पाले में गेंद डाल दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान अभी रुकेगा? क्योंकि आप अच्छे तरीके से रिजिम को भी जानते हैं, आप IRGC को भी जानते हैं। क्या ईरान के पास इस समय ऑप्शन है? एक तो रिजीम नहीं है, इट्स गवर्नमेंट। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि ट्रम्प साहब ने जो इससे पहले कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में जो बात कही कि उनको वाइप ऑफ कर दिया। जनरल कासिम सुलेमानी जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे आईसिस से जंग में, जिसे खुद ट्रम्प साहब के बकौल खुद अमेरिका ने स्पॉन्सर किया था। ये तो हो गई एक चीज़ अलग। इस दफ़ा जो कहा गया है कि हम जो है ये वाइप ऑफ कर देंगे और ये सारी इनकी जो बातें हमेशा की तरह रहती हैं। पिछली दफ़ा अगर याद हो तो ईरान का जो जवाब था ऐनुल असद के बाद, और इन्होंने धमकी दी थी कि आई विल हिट 52 पॉइंट्स इन ईरान, और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया था। तो ये गीदड़ भपकियाँ इनकी जो हैं ये काबिल भरोसा नहीं है। आप भी जानते हैं, आपके मुल्क के साथ भी इन्होंने दावे किए हैं कि हमने जो है पीस पाकिस्तान और इंडिया में करवाया है, इतना कि बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब और आपके जयशंकर साहब ने दोनों ने इसको वो किया कि झूठ बोला है इन्होंने। तो एक झूठे आदमी से भी हम लोगों का सर उकारे। एक दूसरी चीज़ ये है कि बंकर बस्टर मिसाइल्स अभी मारे गए हैं जो फोर्डो पर। तो वहाँ फोर्डो जो है वो कहा जाता है कई 100 मीटर ज़मीन के अंदर, अभी कोई खबर नहीं आई है। और ये जो कह रहे हैं कि बहुत कामयाब रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इन्होंने ईरान की रेड लाइंस क्रॉस की। अभी 3 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था इसके बाद जो कुछ होगा जिम्मेदारी अमेरिका की होगी, और ईरान जो है एक कदम पीछे नहीं हटेगा। और ईरान को अभी इन लोगों ने पहचाना नहीं है। मसला ये है कि अमेरिका ने हमेशा मिसकैलकुलेशन किया है ईरान के बारे में। इस दफ़ा इन लोगों को उम्मीद थी कि बस नेतन्याहू हमला करेंगे और पब्लिक उठ खड़ी होगी और ख़त्म किस्सा। लेकिन यहाँ पे अवामी जो हिमायत है ईरान के पूरे सिस्टम को, ईरान के गवर्नमेंट को, ईरान के एस्टेब्लिशमेंट को, जी। उसको इनकार ये लोग नहीं कर सकते। अब जो है इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और बहुत वास्ट होंगे, वो अमेरिका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होंगे। लेकिन वाकई ईरान को माजरत यानी माफ़ी मांगनी चाहिए अमेरिका से कि अपना मुल्क आके इन लोगों जैदी ने साहब, आपकी अमेरिकन बातों से तो बेसिस ये पे लग रहा है, बना क्योंकि दिया है। जैदी साहब आपकी बातों से ये लग रहा है कि ईरान रिटेलिएट करेगा और शायद और बड़ा रिटेलिएट करेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अमेरिका इस इलाके की चीज़ ही नहीं है, ये बेसिस हैं। वही मैं जो कह रहा हूँ ना कि जैसे कोई गलती ईरान ने की है कि अपने मुल्क को अमेरिकन बेसिस के बीच में बना दिया है। और ये जो है ये बहुत ही बड़ी इन लोगों की हिमाकत है। और ये कि अब इसके बाद जो रिटेलिएशन होगा, ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो पेंटागन के एक्स एक वहाँ पे जो कारकुन हैं, और उन्होंने अभी कहा था, बहुत ही बड़ी पोस्ट पे वो रह चुके हैं, ग्रेगोर, उन्होंने कहा कि 1/3 ऑफ टेल अवीव हैज बीन डिस्ट्रॉयड। जी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद पेंटागन के एक्स वो कह रहे हैं। तो ये वो तेल अवीव है जिसपे सारे आयरन डोम और एरो और पता नहीं डेविड फ्लैकेन और सारी हसन चीजें जैदी, जो है वो वो तो लगाई तस्वीरें गई हम हैं। लगातार और दिखाते रहे अब कि जो किस तरह से इजरायल को नुकसान हुआ है, लेकिन क्या अभी तक आपके पास जानकारी है कि ईरान में जो दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है वहां कितना कितना नुकसान हुआ है? क्या कुछ जानकारी आपके पास पहुंची है अभी तक? देखिए अभी फाइनल रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। अभी जो ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से जो आया है वो ये है कि ये हमला हुआ है।
और अभी कितना नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन अभी चंद ही दिन पहले ईरान ने कहा था कि सारे जितने ऐसी चीजें जो वहां से जिससे खतरा हो कि न्यूक्लियर उससे कह सकते हैं कि वो फैल सकता है, पूरे सारी क्या कहते हैं उसे शुआएं कहते हैं, तो वो फैल सकता है, तो वो वहां से ऑलरेडी निकाल दिया गया